So here one experiment was conducted in which one coin was tossed how many times? ठीक है. In that case, number of heads came 455 times, and number of tails, it is 545. Because it was an experiment, इसको करके देखा गया. So what was the probability? Probability of getting head 455 over 1000. Sum of observations means successful outcomes over total number of outcomes. This definition you must have done for the probability. सबने की है, ठीक है. और probability of happening the event और not happening the event, दोनों का टोटल कितना होता है? 1. ठीक है. एंड इन दिस केस अगर हम हेड एंड टेल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में देते हैं तो हेयर द वैल्यू इज 450 ओवर 1000 अप्रॉक्स. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा? ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? 545 over 1000. So its value is, this was about the experimental probability. Clear? अब दूसरी probability, theoretical probability. We have not done any experiment. हमने करके नहीं देखा उसको. Clear? Beforehand, we are having only two possible outcomes. कौन कौन से? Head and tail. यही होते हैं ना हमारे पास outcomes, head और tail. So what is the probability of getting head? In this case ये sample space हो गया, ठीक है. So if in the random throw of a dice, what is the probability of getting head? Sorry, not dice, coin. ठीक है, coin को toss किया randomly. So what should be the probability of head according to this observation? Sample space में आपके पास head है और tail है. Total number of outcomes कितने हैं? 2 है. उसमें से successful outcome कितने हैं? 1. So 1 over 2. According to theory, its answer should be 0.5. लेकिन practically it is not 0.5 है ना, 1/2 नहीं है. तो क्या है, जब हम practical करके देखते हैं तो probability कुछ और होती है, और जब हम theoretically करके देखते हैं तो उसमें हमने ये beforehand we can calculate कि इसकी without any experiment we can write the result. उसको हमने perform नहीं किया, ठीक है. So when the two results will become equal, जब हमारे पास number of observations, number of experiment हम बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी थी tossing the coin, और इसको हमने 1000 टाइम किया, तो ये वाली वैल्यू 0.4 और ये वाली वैल्यू 0.5. जैसे जैसे हम इनकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 1000 से 10,000, देन और भी ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन इन दैट केस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी विल रीच टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. इज दैट क्लियर? ये दोनों वैल्यूज कब इक्वल होंगी? when there are infinite number of observations. बहुत सारी आप outcomes उसके calculate करो, बहुत सारे experiment करोगे, then the both probabilities will be same. Is that clear? So now the formula, probability की term सबको पता है, ठीक है ना. sample space क्या होता है, events क्या होती हैं. तो सबसे पहले probability theoretical and experimental. Theoretical का second name is
और सेकंड नेम एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी, प्रैक्टिकल वन एंड द सेम नेम। और इनके रिजल्ट कब इक्वल होंगे? when we perform the experiment in number of times, maximum times perform करोगे तो रिजल्ट जो है जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के हैं that will reach to the theoretical probability. Clear? Next is the formula. Probability of an event E is equal to number of successful outcomes और number of trials in the favor, दोनों एक ही बात है ना, divided by total number of outcomes और total number of trials. जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, each result is called outcome of experiment. कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने से क्या क्या हो सकता है आउटकम? इट मे बी हेड, इट मे बी टेल. ठीक है. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज द सेट व्हिच कंटेन्स it is the set which contains all outcomes of an experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी इवेंट के जो पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम्स हैं उन सब के सेट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग ए कॉइन क्या होगा? हाँ, S इज इक्वल टू, एक ही कॉइन को टॉस किया, या तो हेड होगा या टेल होगा. क्लियर? Next is probability of happening the event plus probability of not happening the event. This total is always PE, means probability of happening the event, plus PE naught is always equal to 1. ये जो ऊपर बार है इसका मतलब probability of not happening the event E. Clear? So here E bar is called the complementary of event E. Next is, you all must be knowing what is probability of impossible event. That is 0.
what is the probability of certain event or sure event? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी. So value of the probability of any event E will lie, it must be equal to less than 1 and it must be equal to greater than 0. Probability की वैल्यू कोई भी इवेंट है, it will always be in between 0 to 1. और अगर श्योर इवेंट है तो वैल्यू 0 होगी ना, 1 होगी. क्लियर? और इम्पॉसिबल के लिए 0. और इन बिटवीन जब फाइंड आउट करनी है, दैट आंसर शुड बी बिटवीन 0 to 1. क्लियर? So impossible event, is there any need to write the definition? Impossible event क्या होती है? The event which cannot happen, कभी भी ना हो सके यो event, उसको बोलते हैं impossible event. It is already written in your book. You can underline page number 201. Next is sure event or certain event. ठीक है? Events which always happen, that is sure event. Next is, what are equally likely events? Equally likely events, if the chances of occurrence of any of the outcome are equal. Clear? हम डाइस को करते हैं, रोल करते हैं डाइस को, तो उसमें जो आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस फॉर द डाइस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6. So in this experiment, the chances of occurrence of any of these outcomes are always सेम. ऐसा नहीं है कि आप एक बार डालोगे तो 2 निकलेगा, दूसरी बार डालोगे तब भी 2 निकलेगा. सो दैट आर द इक्वली लाइकली इवेंट्स. और इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालें, सो दैट विल बी 1/6. दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. क्लियर? लेकिन अगर हम डाइस के हर एक 6 फेसेस पे 6 लगा दे, फिक्स कर दिया नंबर 6 ऑन एवरी फेस, तो क्या ये इक्वली लाइकली होंगे? 5 फेसेस पे, चलो 5 फेसेस पे हमने 6 लिख दिया और एक फेस पे 1 लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल बी, दैट विल बी 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विल बी 1/6. क्लियर? तो पता चल गया इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं. अब इसमें 6 इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि 6 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. क्लियर? नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस. नाउ देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1. अब जो सैंपल स्पेस बनाना आता है सबको, यस और नो? ओके, पहले थोड़ी सी मैं 2 एक्टिविटीज करवा देती हूँ आपको. 2 एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं हम लोग. टॉसिंग ऑफ द क्वाइन, एक क्वाइन को आप 2 टाइम्स टॉस करते हो या 2 क्वाइंस को 1 टाइम टॉस करते हो. दीज आर वन एंड द सेम थिंग. आपने 2 क्वाइंस इकट्ठे टॉस कर लिए या एक क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया, आउटकम्स विल बी सेम. तो क्या सैंपल स्पेस होगा? टॉसिंग 2 coins together or tossing a coin 2 times.
तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा बता सकते हैं? इधर बोथ हैड HH और HT और TH, देन या तो फर्स्ट आउटकम हैड होगा, सेकंड आउटकम भी हैड होगा, और फर्स्ट आउटकम हैड, सेकंड आउटकम, और फर्स्ट आउटकम टेल, सेकंड हेड, और बोथ टेल्स। क्लियर? अगर आपको डायरेक्ट बनाना नहीं आता तो जब आपने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो वो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। क्लियर? वंस यू हैव गॉट द आउटकम ऑफ फर्स्ट कॉइन डालने के बाद आपने जब दूसरी बार उसको कॉइन को टॉस किया, सपोज इन द फर्स्ट कॉइन इट इज हेड, तो हेड के लिए व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर सेकंड कॉइन? इट मे बी हेड, इट मे बी टेल। सपोज फर्स्ट बारी हेड नहीं आया, आपने टॉस किया, फर्स्ट कॉइन पे टेल आया, अगर फर्स्ट पे टेल है तो फिर से सेकंड कॉइन के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं? अगेन इट मे बी हेड, इट मे बी टेल। अब यहाँ पे आपने आउटकम्स लिखने हैं, ये मेथड बता रही हूं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता तो। फर्स्ट आउटकम हेड, सेकंड आउटकम हेड, सो इट इज HH। हियर फर्स्ट आउटकम हेड और टेल, सो इट इज HT, और फर्स्ट आउटकम टेल, सेकंड हेड, TH, फर्स्ट आउटकम टेल, सेकंड टेल, सो इट इज TT। क्लियर? तो सैंपल स्पेस में ये सारे किसमें आ गए? सैंपल स्पेस में। तो ऐसे बनाते हैं सैंपल स्पेस, HH, HT, TH, TT। क्लियर? जैसे जैसे इसके ट्रायल बढ़ते हैं, ये 2 टाइम्स किया, अगर 3 टाइम्स करोगे तो थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल, फिर थर्ड ट्रायल का हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर फर्स्ट 2 में हेड है तो थर्ड में क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इट मे बी हेड, इट मे बी टेल। तो ये बना लिया सबने फॉर 2 कॉइन्स। क्लियर? इफ वी आर टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, अब 3 के लिए सैंपल स्पेस बना के देखिए, इंस्टेड 2 3 टाइम्स, अब इंस्टेड ऑफ 2 हाँ जी, ये सेकंड, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें फर्स्ट हेड और फर्स्ट टेल, ये सेकंड हो गया है ना। अब आपके पास एट ए टाइम 2 आउटकम्स हो गए, HH। अगर फर्स्ट पे H है, सेकंड पे H है, तो थर्ड के चांस क्या हो सकते हैं? इट मे बी हेड, इट मे बी टेल। इट इज द थर्ड टाइम वी आर टॉसिंग द कॉइन। क्लियर? सिमिलरली इफ इट इज हेड, सेकंड पे हेड है तो टेल हो सकता है, फर्स्ट हेड, सेकंड टेल, देन मे बी 2 चांसेस हेड एंड टेल। अगेन इसके लिए फिर से 2 चांसेस हेड एंड टेल, अगेन हेड एंड टेल। नाउ द आउटकम्स, सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम्स होंगे? HH। अब ये क्या है? आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स टोटल जितने सैंपल स्पेस में होंगे, HHT, नेक्स्ट HTH, next is HTT, next is THH, next is THT, next is TTH, and then, so how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 outcomes in the sample space. Clear? तो कैसे लिखना है सैंपल स्पेस को? S is equal to HHH, HHT, then HTH, after that HTT, THH, then THT, after that TTH,
क्लियर? तो ये आपने सैंपल स्पेस बना लिया। अगर डायरेक्ट बना सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चलता कंफ्यूजन होती है, यू कैन ड्रॉ टेबल लाइक दिस। ओके जी। नॉट रोलिंग द डाइस, जब हम 2 डाइस को टुगेदर रोल करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? उसमें अगर हम ऐसे करेंगे, एक बार डाइस में अगर 1 आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 बार लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसके लिए बहुत बड़ा पेज चाहिए, है ना? So for that we follow the rectangular pattern. हाँ जी, ये हो गया सबका? रणवीर, have you done? नोट कर लिया? When 2 dice are thrown together or 1 die is thrown 2 times, clear? Together or simultaneously, one and the same thing, है ना? एक ही बारी में फेंकने हैं दोनों। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं इन द सैंपल स्पेस? तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज? तो हमारे पास जो नंबर्स हैं कहां से कहां तक है? 1 से 1 2 3 4 5 6. In the same way here also 1 2 3 4 5 and then 6. Now suppose in the first throw, पहली बार जब आपने फेंका 1 है, तो सेकंड चांस क्या हो सकता है? इट मे बी 1, इट मे बी 2, क्लियर? फर्स्ट आउटकम इज 1, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आउटकम्स होंगे? 6, इज इट? ऐसे ही 6 आउटकम कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट आउटकम 2, तो टोटल नंबर ऑफ कम इधर 6 है, 6 के अकॉर्डिंग इधर 6 into 6 total outcomes will be 36. So here 1 3 1 4 1 5 1 6, क्लियर? अब इसको कंप्लीट करिए। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब ये जो नंबर है 2 2, इसको बोलते हैं डबलेट, जो 2 टाइम्स आ रहा, 1 1, क्लियर? नेक्स्ट इज 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. कैन यू कंप्लीट द टेबल योरसेल्फ? फटाफट कंप्लीट करिए। तो ये कितने हो गए टोटल? 36 आउटकम्स, क्लियर? अब इसमें से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस हैव सेम नंबर ऑन इट, तो सेम नंबर वाले कौन से हो गए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने नंबर्स हैं? कितने हैं? 6 over 36, है ना? ये नंबर 6 है ओवर 36, क्लियर? How many outcomes are there in which total sum on the both the dice is 12?
12 सम किस किस का हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू 6 एक पे और 6 पे दूसरी की वैल्यू है ना, 6 + 6 12. ओनली वन आउटकम इज देयर, 6 6 देयर, टोटल इज 12. सो इट इज 1/36. तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 ऑन बोथ द डाइस. तो 9 के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? तो उसके लिए आप सारा स्पेस नहीं बनाओगे. टोटल 9 कब पॉसिबल है? फर्स्ट वैल्यू 6 से स्टार्ट हो जाइए, टोटल 9 करना है. इट मे बी 6 3, इधर एक नंबर कम करते जाइए, इधर एक बढ़ाते जाइए. देन 5 4, देन अगला हियर 4 5, ठीक है. उसके बाद 3 6, ठीक है. 7 इज नॉट ऑन द डाइस, नहीं होता. तो ये आउटकम्स हो गए. टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल 36, टोटल 36 होंगे ना. और सक्सेसफुल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6. तो ऐसे बना सकते हो ना अपने आप. क्लियर? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब आप कॉइन को टॉस करते हो, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड सिंगल टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2 है ना. और जब उसको 2 टाइम्स टॉस किया तो 4. तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ आउटकम्स when coin is tossed n times is equal to 2 raised power n. Is it clear? एक बार टॉस किया तो 2 आउटकम्स, 2 टाइम्स किया तो 4 है ना, 3 टाइम्स किया तो 8. फॉर्मूला याद रहेगा. अब ये 2 क्या है? आउटकम्स इन सिंगल थ्रो. एक बार जब करते हैं हम एक्सपेरिमेंट तो उसमें कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 2 आउटकम्स. जब डाइस का केस आता है तो when a dice is thrown n times, तो number of outcomes 6 raised power n. कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं रेज पावर n. आपने जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट करना है, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, गेटिंग ऑल हेड्स ऑन 4 थ्रू ऑफ द कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, तो क्या होगा? 4 के अकॉर्डिंग आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालोगे 2 रेज पावर 4, लेकिन उसमें 4 हेड वाला एक ही आउटकम होगा. सो इट विल बी 1/16. क्लियर? तो आपको पूरा सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं होती. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. हाँ जी, 1 by 1 विल यू आंसर. हाँ जी, इधर से स्टार्ट करिए. 15.1 एक्सरसाइज. Probability of the event E, probability of event not E, PE plus P not E is equal to 1. Second, the probability of an event that cannot happen is 0. हाँ जी, And probability of event which can never happen, that is 0. और certain event 1 है ना. Okay, such an event is called, event का नेम यानी श्योर इवेंट का लिख दिया, that event is impossible. Okay, start. Next question. probability of an
वन, और ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? जैसे आपने सैंपल स्पेस बनाया टॉसिंग ए रोलिंग अ डाइस, ठीक है। अब इसमें सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 1, ठीक है। 6 इंटू 1/6। नेक्स्ट, probability of an event is equal to or greater than 0, and the second one is less than or equal to 1. Clear?